Good afternoon, students. Now, continuing with the previous topic which we have discussed in previous lecture about the alkaloids, and alkaloid में first drug is Vinca alkaloid. Now, next drug in alkaloidal category is Rauwolfia alkaloids. This is the plant. Rauwolfia को सर्पगंधा भी बोलते हैं. देखेंगे आप ये प्लांट. सर्पगंधा की लीव्स कैसी हैं, डिफरेंट फ्रॉम विनका. नेक्स्ट इज रूट ऑफ सर्पगंधा. सी, its shape is like a snake, that's why it is also known as snake root. Now, synonyms are sarpagandha, chandrika. Sarpagandha, it is known as sarpagandha because its shape of root is like a sarp, like a सांप, स्नेक. ठीक है. चंद्रिका कुछ लोकल लैंग्वेज में से छोटा चंद भी बोलते हैं, इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं. नाउ द बायोलॉजिकल सोर्स. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ Rauwolfia serpentina belonging to family Apocynaceae. मीन्स इसका बोटेनिकल नेम है Rauwolfia serpentina. इसको आपने अंडरलाइन करना है जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. Now, the geographical source. It is an erect, evergreen, small shrub native to the Orient and occurs from India to Sumatra. It is also found in Burma, Thailand, Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Pakistan and Java. In India, in the sub-Himalayan tracts from Sirhind eastwards to Assam, especially in Dehradun. Sivalik range, Rohilkhand, Gorakhpur ascending to 1300 meters east, and West Ghats of Tamil Nadu in Bihar, Patna and Bhagalpur, Konkan, Karnataka and Bengal. In these places, this plant is found. Now, next is cultivation and collection. Cultivation and collection means how to cultivate this plant. Rauwolfia grows in tropical forests at an altitude of 1200 to 1300 meter. Means for the proper growth of a plant, 1200 to 1300 meter height is required and the temperature is about 10 to 40 degrees centigrade. There should be enough rain or irrigation for its cultivation. Means it requires the irrigated field, well irrigated fields and enough rainfall for its proper cultivation. The soil should be acidic. The pH of the soil should be 4 to 6. Clayey soil and manure is applied for the better crop. Propagation is done by planting seeds. Means seeds are sown in the fields, in the proper nourished fields, and it is done by the process of propagation. Root cuttings or stem cuttings. Okay. These root cuttings and stem cuttings are also being followed other than propagation of seeds. Next is better drug is obtained when the propagation is carried out with fresh seeds. Means yield of alkaloid is maximum when we propagate through fresh seeds. Okay, fresh seeds are required for its better cultivation and better growth of alkaloidal constituents. The plant should be protected from nematodes, fungus and mosaic virus. जो ये प्लांट है आपका Rauwolfia, इसमें बहुत जल्दी कोई भी आपका माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें फ्रेश सीड और अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करने होते हैं. द ड्रग इज कलेक्टेड मेनली फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स. Roots, rhizomes are dug out in October and November when the plant roots are 2 to 4 years old. Okay. The aerial parts and roots are separated. Means जो aerial parts हैं, जो ज़मीन से ऊपर के parts हैं, उन सबको aerial parts बोलते हैं. एरियल पार्ट्स को और रूट्स को दोनों को अलग अलग रख लेंगे. फिर उन रूट्स को वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे एयर में. देन द रूट्स कंटेनिंग मॉइस्चर अप टू 12%. देन रूट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है. अगर उसमें 12% से ज़्यादा है तो उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे लाइट से. सीजनल वेरिएशंस, जेनेटिक डिफरेंसेस, ज्योग्राफिक लोकेशन, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड ड्राइंग and other factors account for percentage differences in alkaloid amount. Means कोई किसी भी टाइप की सीजनल वेरिएशन हो, जेनेटिक डिफरेंसेस हो इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ज्योग्राफिक लोकेशन की कोई डिफरेंसेस हो, इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो आपकी ड्यूरिंग द कल्टिवेशन,
and drying and other factors account for percentage differences in alkaloidal amount. It should be packaged and stored in well closed containers in a cool, dry place that is secure against insect attack. Okay. Next is morphological characteristics like microscopy. Roots and rhizomes are almost identical in external characters. Roots और rhizomes identical होते हैं external characters में, ठीक है. उनमें मतलब ज़्यादा basic difference किसी एक particular चीज़ के लिए होता है, वो we will discuss it further. The drug occurs in cylindrical or slightly tapering tortuous species. You can see it. The ends of drug means जो आपकी root है उसके ends जो हैं वो टेपरिंग है, स्लाइटली टेपरिंग और सिलेंड्रिकल भी है साथ में. टॉर्चुअस स्पीशीज है, पीसेज है. 2 to 10 सेंटीमीटर वो उनकी लेंथ है और डायमीटर है 5 to 22 मिलीमीटर्स. नेक्स्ट, द रूट्स आर रेयरली ब्रांच्ड इन नेचर. मतलब रूट्स आपकी ब्रांच मिलेगी, फुल्ली ब्रांच मतलब एक साथ बहुत सारी रखी होंगी आपकी. Rootlets are 0.5 to 1 millimeter in diameter and are rare in nature. The outer surface is grayish yellow, light brown in color or brown in color. Young pieces contain slight wrinkles while old pieces have longitudinal ridges. Next, circular scars of rootlets are present. Means आपकी जो रूटलेट्स होंगी, जो रूट्स और राइजोम्स में डिफरेंस है वो स्कार्स का डिफरेंस है. स्कार्स मीन्स आपके राउंड शेप, आपकी ब्लैकिश कलर के. मीन्स अगर ब्राउनिश आपकी रूट है तो उस पर ब्लैकिश कलर के राउंड राउंड आपके होल्स बने होंगे. तो वही आपका बेसिक डिफरेंस है रूट्स और राइजोम्स के बीच में. Bark exfoliation is present in old samples, leaving behind patches of exposed wood. फ्रैक्चर इसका शॉर्ट होता है, नैरो yellowish brown bark होती है and a dense pale yellow wood which are present on the smooth transverse surface at both the ends. Pieces of rhizome closely resemble the root but may be identified by a small central pith. Means जो rhizome और root हैं वो closely resemble होते हैं एक दूसरे के साथ but identify होते हैं by a small central pith. ओके अभी मैंने डिस्कस किया था स्मॉल सेंट्रल पिथ मीन्स उसमें सर्कुलर स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एंड राइजोम. दे आर अटैच्ड टू देम विद स्मॉल पीसेस ऑफ एरियल स्टेम. स्लाइट ओडर इज फेल्ट इन रिसेंटली ड्राइड ड्रग विच डिक्रीजेस विद एज. टेस्ट इज बिटर, वेरी बिटर इन नेचर. नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए. यू कैन ऑब्जर्व इन प्रीवियस ड्रग दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट बिकॉज इसकी जो मेन बेनिफिशियल है वो रूट है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर्पगंधा रूट के बारे में, तो उसका रूट का आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आप. इसमें आप देखेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉक इज प्रेजेंट मीन्स यू कैन सी इट. स्ट्रेटिफाइड कॉक रेक्टेंगुलर ये आपकी लेयर्स हैं, ये डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए तभी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं इजीली. स्ट्रेटिफाइड कॉक इज प्रेजेंट. कॉक क्या होता है, जैसे लीव में एपिडर्मिस होती है ऐसे ही रूट में कॉक होता है जो कि एपिडर्मिस की जगह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, जब ये मेच्योरिटी स्टेज होती है तो ये कॉर्क हट जाती है कुछ प्लांट्स में से और वहाँ पे क्या होता है आपका फिर एयर इंट्रैप हो जाती है. एयर इंट्रैप हो जाएगी और उसके साथ कुछ स्टार्च ग्रेन्स और ये सब इंट्रैप हो जाता है जिससे कि उसको स्ट्रेंथ मिलती रहती है फिर भी मेच्योरिटी के बाद भी. नेक्स्ट अब आप देखेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉक में आपकी 4 लेयर्स हैं, 4 to 5 लेयर्स हैं लेकिन डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉक. कॉक प्रेजेंट है, क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज फेलोडर्म. फेलोडर्म यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व द पॉलीगोनल हेक्सागोनल सेल्स ऑफ फेलोडर्म विच ऑल्सो कंटेन्स द स्टार्च ग्रेन इन इट. फेलोडर्म का वर्क क्या होता है, to provide strength means it is a small layer inside the stratified cork. means cork के बाद जो layer है आपकी फेलोडर्म है जो क्या करती है स्टार्च और बहुत सारा फूड मटेरियल आपका स्टोर करती है लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड स्टार्च ग्रेन्स, ये सब स्टोर करती है जिससे कि रूट से पूरे के पूरे प्लांट में आपके सारा का सारा फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. फेलोडर्म कंटेन्स स्टार्च ग्रेन प्रोवाइड स्टार्च टू द होल रूट. कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स विच प्रोवाइड कैल्शियम अवेलेबिलिटी, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है फेलोडर्म. ठीक है, क्योंकि रूट में जब सब कुछ प्रेजेंट होगा वो ही आपका पूरे प्लांट में एक्सपोर्ट होगा. नेक्स्ट इज सेकेंडरी फ्लोएम
which helps in the maintenance of food particles inside the root. फूड पार्टिकल्स लाइक लिपिड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, स्टार्च ग्रेन, ये सब स्टार्च ग्रेन सारी चीज़ें यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट है थोड़ी थोड़ी जगह पर, ठीक है. नेक्स्ट इज वेसल्स. वेसल्स यू कैन सी दिस राउंड स्ट्रक्चर इज नोन एज वेसल्स. वेसल्स का क्या काम होता है, ये भी वाटर को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज वुड फाइबर्स, वुड पेरेंकाइमा, इन सब का एक मिला जुला काम है. लाइक कॉम्बिनेशन में ये सब काम करते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसफर, लिपिड ट्रांसपोर्ट इन द होल प्लांट, ठीक है. वुड पेरेंकाइमा. मेडुलरी रेज आपकी दिखाई देंगी, ये जो दो लेयर दिखाई दे रही हैं दीज आर मेडुलरी रेज, ये सारे में आपकी दिखाई देंगी. ये मेडुलरी रेज आपकी क्या काम करती हैं, इट प्रोवाइड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसाइड द होल रूट, ठीक है. यहीं से आपका सारा वेसल्स का पेरेंकाइमा सेल्स लाइक फ्लोएम, जाइलम, वेसल्स सब चीज़ को ये स्टोर करती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इसी के थ्रू हमारी सारी चीज़ें ऑन प्लेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. नाउ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट शोज अ स्ट्रेटिफाइड कॉर्क जो कि डिवाइडेड है 2 to 8 ऑल्टरनेटिंग जोन्स में. इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 7 लेयर्स ऑफ स्मॉलर एंड रेडियली नैरोअर सुबराइज नॉन लिग्निफाइड सेल्स. मीन्स इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो आपके स्ट्रेटिफाइड कॉर्क है उसमें. नेक्स्ट द फेलोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 10 to 12 लेयर्स ऑफ tangentially elongated isodiametric cellulosic parenchymatous cells, ठीक है. ये सब टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी जब भी आप ये लिखेंगे इसकी माइक्रोस्कोपिकल डिटेल्स, ठीक है. तो फेलोडर्म में क्या है, 12 लेयर्स है, टेंजेंशियली इलोंगेटेड आइसोडायमेट्रिक सेल्यूलोजिक और पेरेंकाइमा सेल्स, ठीक है. नेक्स्ट सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेंकाइमेटस. मीन्स जो एरिया होता है आफ्टर द स्ट्रेटिफाइड कॉर्क, मीन्स स्ट्रेटिफाइड कॉर्क के नीचे का जो एरिया है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं. सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेंकाइमेटस. एंड एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, पेरेंकाइमा मीन्स पेरेंकाइमा जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कवर हो जाता है. एंड कंटेन स्टार्च ग्रेन, मीन जो पेरेंकाइमा सेल्स है उसमें आपके स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. नेक्स्ट phloem is narrow and consists of parenchyma with scattered sieve tissue like I have shown in the figure. Like sieve tissue is just like vessels. Vessels are whole cavity और जो provide करती है आपकी air entrapment in the root. Parenchyma alternate with broader medullary rays composed of large cell usually 2 to 4 cells wide, ठीक है. नेक्स्ट जाइलम इज वाइड एंटायरली लिग्निफाइड. जो जाइलम है आपका उसमें लिग्निन प्रेजेंट है, ठीक है. 2 to 5 एनुअल रिंग्स उसमें प्रेजेंट होती हैं. मेडुलरी रेज 1 to 5 cells wide, contain starch grains and alternate with secondary xylem. It consists of vessels, tracheids, fibers and parenchyma cells. Xylem vessels have pitted thickening. जो vessels है उसमें आपने देखा था like you can see ये pitted thickening है. ये जो एक लेयर है इसके साइड में जो वेसल्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं pitted thickening, ठीक है. नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यू कैन सी रोवोल्फिया कंटेन्स अबाउट 0.7 to 2.4% total alkaloidal bases from which more than 80 alkaloids have been isolated. मीन्स रोवोल्फिया में टोटल अल्कलॉइडल परसेंट है 0.7 to 2.4%, जिसमें से 80 अल्कलॉइड्स हम आइसोलेट करते हैं. नेक्स्ट द प्रोमिनेंट अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द ड्रग आर. जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके, जो मेन अल्कलॉइड प्रेजेंट है रोवोल्फिया में वो है रेज़ोपिन, रेसिनामीन, रेसिडीन, रोबेसिन, डेस्पेरिडीन, ठीक है. द अदर अल्कलॉइडल कंपोनेंट जो अदर अल्कलॉइड्स हैं अदर देन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो हैं अजमेलिन, अजमेलिसिन, सर्पेंटिनिडीन, टेट्राहाइड्रोरेज़ोपिन, रूबेसिन, रेज़रपिन, आइसोअजमेलिन एंड यूहेम्बिनिन. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लाइक इसका जो बोटानिकल नेम था दैट इज रोवोल्फिया सर्पेंटिना, उसी से रिलेटेड आपके मोस्टली जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है वैसे ही होते हैं. जैसे सर्पेंटिना है तो उसी से आगे आपका सर्पेंटीन एंड सर्पेंटिनिन, ठीक है. नेक्स्ट कल आपको मैंने एक चीज़ बताई ही थी जिसमें भी INE लगता है, वही आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द अल्कलॉइडल कॉन्स्टिट्यूएंट, टर्पिनॉइडल कॉन्स्टिट्यूएंट. जितने भी अल्कलॉइड्स होंगे उनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसमें INE लगा होता है लास्ट में. द अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है फाइटोस्टेरॉल्स, फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड शुगर्स. These are the structures.
ये भी इंडोल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो 80 अल्कलॉइड्स हैं वो भी इंडोल अल्कलॉइड्स है। कल मैंने बताया था इंडोल रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग एंड NH 5 मेंबर्ड रिंग एंड NH, ठीक है। ये हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इनमें से आप कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉ कर सकते हैं व्हेन आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। लाइक सर्पेंटीन, रेजोपीन, रेसिनामीन, योहेम्बीन, अजमेलिसिन एंड अजमेलिन। ये स्ट्रक्चर्स आपको गम अप करने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट यूजेस, यूजेस है इसका एज हिप्नोटिक, sedative, antihypertensive. These terms no need to explain over here, I think so, and everybody is well aware about these terms. It is specific for insanity, reduces blood pressure and cures pain due to affections of the bowels. It is given in labors to increase uterine contractions and in certain neuropsychiatric disorders, ठीक है। अजमेलिन विच हैज़ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ क्विनिडीन। जो अजमेलिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसकी कुछ कुछ एक्टिविटी क्विनिडीन की तरह है, जो क्विनिडीन एंटी मलेरियल ड्रग है। मार्केटेड है वो जापान में और यूज होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमियास, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल रेजोपीन इज अ वाइट और पेल बफ टू स्लाइटली येलो odorless crystalline powder that darkens slowly when exposed to light। मतलब जो रेजोपीन पाउडर है उसको हम जब एक्सपोज करेंगे लाइट में तो वो डार्कन कलर का हो जाएगा, ठीक है। एंड रैपिडली व्हेन इन सॉल्यूशन, डार्क कलर का क्यों हो जाएगा, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। Rezapine is an antihypertensive and tranquilizer. Resinamine is the methyl respirate ester of 3,4,5 trimethoxycinnamic acid. The usual antihypertensive dose of resinamine is 500 micrograms, ठीक है। इससे above आप डोज नहीं देंगे। It is wide range tranquilizer, antihypertensive and is free from any side effect, ठीक है। ये इसकी important characteristic है इस रेजोपीन की। नेक्स्ट सब्सटीट्यूट्स, रोवोल्फिया, वोमिटोरिया। मीन्स अगर ये ड्रग प्रेजेंट नहीं है तो कुछ अमाउंट में हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया निटिडा, रोवोल्फिया रोजिया, रोवोल्फिया मिक्रेंथा। कॉमर्शियल वेराइटीज़, कॉमर्शियल वेराइटी मीन्स किस किस नाम से ये वेराइटी मिलती है, रोवोल्फिया ट्राइफोलिएटा, रोवोल्फिया ओबर्सा, एंड द एडल्टरेंट्स आर रोवोल्फिया डेंसिटीफ्लोरा, रोवोल्फिया पैराकेंसिस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रोवोल्फिया, ओके। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।